According to sources, this is what we are picking up, that Mahua Moitra will appear before the ethics panel on 2nd of November. So, sources are telling us that Mahua Moitra has confirmed her appearance before the ethics panel, which will be on the 2nd of November. Now, instead of 31st October, which is today, we're given to understand that she's now been asked to appear on the 2nd of November, and she has confirmed that she would be appearing before the ethics panel. This is what we are picking up from our sources, and of course this is in connection with the cash for query case. So the committee, remember, asserted that no further extension will be granted, and Mahua Moitra has now confirmed that she will be appearing before the committee in the cash for query case. Nishikant Dubey and Jay Anand Dehadrai already have deposed before the committee. We have Aishwarya joining us on the broadcast with more details. We also have Amit on the broadcast with us. Let's go across to Amit first. Amit, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महुआ मोइत्रा जो है वो 2 नवंबर को हाजिर जरूर होंगी. एथिक्स कमेटी ने भी अपनी तरफ से कह दिया था कि इससे ज्यादा एक्सटेंशन वो देंगे नहीं. जी देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था महुआ मोइत्रा के पास कि 2 तारीख को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के अलावा, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने साफ कर दिया था, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने जब 31 को बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो 4 तक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, इसके बाद वो आ सकती है. लेकिन जब 2 तारीख का समय तय किया गया और साथ में इस लेटर में यह भी कहा गया कि अब एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है और इसके बाद जो कमेटी है वो आजाद होगी अपना फैसला लेने के लिए, तो ऐसे में 2 तारीख को वो पेश होंगी. और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम जो मिनिस्ट्रीज है जिसको सवाल जवाब भेजा गया था कमेटी की तरफ से, जो विनोद सोनकर है, उन्होंने एक सवाल क्वेश्चन किया था कि जो एलिगेशन है उसके आधार पर आईटी मिनिस्ट्री के साथ होम मिनिस्ट्री और जो एमईए है उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो उनकी रिपोर्ट्स भी आ जा रही हैं और उन तमाम चीजों का सवाल जवाब भी किया जाएगा. वो पहले अपना पक्ष रखेंगी और इसके बाद पक्ष रखने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, यानी कि जो अपनी बात वो रखेंगी, इसके बाद कमेटी के तमाम लोग जो होंगे वो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं, चाहे हीरा नंदानी की तरफ से, चाहे अनंत की तरफ से या फिर निशिकांत दुबे से. तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि 2 तारीख को एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा पेश होंगी और तमाम सवालों का जवाब भी देंगी और अपना पक्ष भी रखेंगी इन तमाम आरोपों के ऊपर. Right. Amit, stay on with us. We have Aishwarya as well on the broadcast. Aishwarya, let's also talk about today's legal developments. Mahua Moitra wants media organizations named to be dropped from that case of defamation. And Nishikant Dubey, in fact, has taken a jibe on social media. His lawyer in the court said Mahua Moitra has admitted that she did make a mistake. Well, certainly that's a fresh development that has come forward, that Mahua Moitra wanted to drop the media company names and those journalists who had been named in that particular defamation case, to which Nishikant Dubey had already took a jibe on Mahua Moitra, that what in first place she put those names. But on the other side, it is very important that you know what we have seen earlier in the ethics committee meeting, that Jay Anand Dehadrai and also Nishikant Dubey already had appeared and submitted several documents in this regard. But this was pertaining to a defamation case that Mahua Moitra filed against Nishikant Dubey, right. And their lawyers argued Aishwarya, upon. Let me quickly go back to Amit. Stay on with us. Amit, अब तक जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, निशिकांत दुबे और जय आनंद देहाद्राय ने डिपोज किया है एथिक्स पैनल के सामने और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए. जहां तक आरोपों की बात है तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ एलिगेशंस. एक में कहा गया है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया, जिसपे पहले महुआ मोइत्रा ने इनकार किया था, बाद में एडमिट कर लिया कि हाँ पीएस को तो अक्सर दिया ही जाता है, तो उन्होंने भी शेयर किया है. हालांकि दर्शन हिनांदी उनके पीए नहीं है, वो एक बिजनेस टाइकून है. जी देखिए, जो एलिगेशन अगर आप देखिए तो जो पूरी कमेटी की मीटिंग करीब 2.5 घंटे मीटिंग चली थी 26 तारीख को. पहले जयानंद ने अपनी बात रखी, फिर उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया, फिर निशिकांत दुबे पहुंचे थे और इस दौरान जो सबसे बड़ी बात थी, जो चेयरमैन है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पूरी एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को बड़ी गंभीर माना है. बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि सदन के भीतर सवाल लेने के बदले में जो पैसे लेने की बात या गिफ्ट लेने की बात या जो एलिगेशन से और हीरा नंदानी के का जो एक तरह से बयान है वो आने के बाद ये और गंभीर मसला बन जाता है. और दूसरा पक्ष अगर आप देखिए तो उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात आ रही है, क्योंकि जो एनआईसी के जो अगर आप पासवर्ड और वो को शेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है. तो इसीलिए इसमें होम मिनिस्ट्री से भी कुछ सजेशंस लिए गए हैं, मांगे गए हैं, विदेश मंत्रालय से मांगे गए थे कि क्या ये जो लॉगिन आईडी है जिस वक्त जो उसका इस्तेमाल किया दुबई से हुआ है, कि क्योंकि हीरा नंदानी दुबई में थे
तो ये भी एक पक्ष है। तो ऐसे में एक बहुत ही गंभीर मसला है और मुझे लगता है इस पूरे मामले में घिरती नजर आ रही है महुआ मोइत्रा। और इसीलिए शायद आज जब कोर्ट में मामला गया था मानहानि का, तो अपने आप को थोड़ा वो बैक ट्रैक करते हुए दिख रही हैं कि वो मीडिया या तमाम लोगों को रोकना नहीं चाहती, उनसे पीछे हट रही हैं। और 2 तारीख को वो अपना जब पक्ष रखेंगी, बहुत एग्रेसिव पहले तो लग रही थी महुआ मोइत्रा, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जिस तरह का डिपोजिशन एक तरह का जो दिया है हीरानंदानी ने, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा महुआ मोइत्रा के लिए कि वो अपना पक्ष किस तरह से रखती हैं, क्या रखती हैं। अब 2 तारीख को बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब 11 बजे कमेटी बैठेगी और कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा होंगी।